students, your Shikha ma'am is again with you to discuss some more topics on food making in plants. In the previous video, we have read up to the some experiments that starch is present in leaves. And the second experiment is sunlight is necessary for photosynthesis. Necessary for photosynthesis. So today we discuss about some unusual plants. There are many types of plants in the nature. There are some unusual in some different ways in unusual plants. Today we discuss about 4 types of unusual plants. 4 तरह के unusual plants के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. First one is insectivorous plants. Second one is insectivorous plants. Non-green plants. Third one is plants with leaves other than green color. And the last one is plants with no leaves. Now, first of all, we talk about the insectivorous plants. Insectivorous नाम से पता चल रहा है insects से जो insects को खाते हैं वो plants को बोलते हैं insectivorous plants. The plants that eat insects. Insectivorous plants. First one is insectivorous plants. The definition of insectivorous plants is the plants that eat insects. Insectivorous plants वो होते हैं जो plants insects को खा जाते हैं. Means the insects that sits on the plant to suck the nectar. नेक्टर को चूसने के लिए जब वो बैठते हैं पत्ते के ऊपर, लीव्स के ऊपर, the leaves trap them. वो उन्हें अपने जाल में बांध लेते हैं. Leaves traps the insects and eat them. जाल में फंसा लेते हैं और उन्हें खा जाते हैं. These plants grow in the soil which is poor in minerals. These plants grow in the soil which is poor in minerals. Poor in minerals means जिसमें बहुत अच्छे minerals नहीं होते. ये plants उस मिट्टी में उगते हैं जिसमें कि मिनरल्स बहुत अच्छे नहीं होते. तो इसलिए ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या करते हैं, दे टेक द रिक्वायर्ड मिनरल्स, जो उन्हें मिनरल्स अपने खाना बनाने के लिए जरूरी होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो रिक्वायर्ड मिनरल्स किससे लेते हैं, द इंसेक्ट्स दे ईट. जो इंसेक्ट्स वो खाते हैं उनसे वो रिक्वायर्ड मिनरल्स लेते हैं. दे टेक द रिक्वायर्ड मिनरल्स, minerals from the insects they eat. जो insects वो खाते हैं उन्हीं से वो required minerals लेते हैं. Now some examples of
Examples of insectivorous plants. First one is Venus flytrap. Venus flytrap. Second one is pitcher plant. Pitcher plant. And the third one is sundew plant. Sundew plant. These are the examples of insectivorous plants. Venus flytrap, pitcher plant, sundew plants. Now, the next one is non-green plants. This is the insectivorous plants. अब हम किस जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं. अब हम किस नेक्स्ट टाइप के प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि नॉन ग्रीन. नॉन ग्रीन मीन्स ग्रीन कलर के नहीं होते, उनके बारे में रीड आउट करेंगे. विच इज नॉन ग्रीन. नॉन ग्रीन प्लांट्स. देखो नाम से ही पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है ना, नॉन ग्रीन. नॉन ग्रीन मीन्स ग्रीन कलर के नहीं होते. सो फंगीज. फंगीज आर द नॉन ग्रीन प्लांट्स. माउल्ड्स एंड मशरूम्स. मशरूम्स तो आपने देखे होंगे, मम्मा आपके बनाते हैं ना, व्हाइट कलर के होते हैं, व्हाइट एंड ब्राउन कलर के. दे आर नॉट ऑफ ग्रीन कलर. सो माउल्ड्स, examples of non-green plant moulds and mushrooms. Moulds and mushrooms are the non-green plants. These also they do not have the green color. अब इनमें ग्रीन कलर नहीं होता, नाम से पता चल रहा है कि इनमें ग्रीन कलर नहीं होता. So they cannot make their own food with the process of photosynthesis. इसलिए वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से. अब ये जो होते हैं ये किससे लेते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर. डेड एंड डिकेइंग plants and animals. They take their food from the dead and decaying plants and animals. अब ये जो पौधे होते हैं अपना खाना, जो सड़े गले प्लांट्स होते हैं, प्लांट जो सड़ गल जाते हैं, मिट्टी में घुल जाते हैं, उनसे, या एनिमल्स जो मर जाते हैं और मिट्टी में दब जाते हैं, उनसे वो अपना खाना लेते हैं. They cannot make their own food by the photosynthesis because they are not green in color, as green pigment is very necessary for the photosynthesis. So, moulds and mushroom. These are the examples of non-green plants. These are called heterotrophs. These are called heterotrophs. अब इनको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स. हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है, इनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स. अगर हमें स्पेलिंग्स नहीं लर्न हो रहे तो हम हेटेरोट्रॉप्स करके लर्न करते हैं, बट इट वाज प्रोनाउंस्ड एज हेटेरोट्रॉप्स. ओके. नाउ द अदर plants are plants with the leaves other than green color. अब हम पढ़ेंगे plants. Other types of plants are the plants with leaves other than green color. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के नहीं होते. दे आर ऑफ रेड कलर, येलो कलर, पर्पल कलर, पिंक कलर, एटसेट्रा. They are of these types of colors. Do you think they cannot make their own food? No. These plants can also make their food by the process of photosynthesis. ये जो plants होते हैं ये भी अपना खाना बनाते हैं by the process of photosynthesis.
लेकिन इनका ये जो कलर होता है, इनमें जो क्लोरोफिल होता है, दैट इज इन द अदर टाइप ऑफ अदर कलर्ड पिगमेंट. क्लोरोफिल is in the other colored pigment. इनमें जो क्लोरोफिल होता है, जो कि जैसे बाकी उसमें पौधों में होता है ना ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स प्रेजेंट इन द लीव्स. इनमें जो क्लोरोफिल होता है वो दूसरे कलर की फॉर्म में होता है, पिगमेंट्स की फॉर्म में होता है. सो the examples of these types of plants are, अब इन ऐसे प्लांट्स जिनकी लीव्स ग्रीन कलर की नहीं होती, दूसरे रंगों की होती हैं, उनके एग्जांपल्स क्या हैं? कॉलियस एंड क्रोटन croton. These are the examples of plants with leaves other than the green color. Now come to the other category of the plants. Other category of the plant are plants with no leaves. अब एक और कैटेगरी हमने पढ़ी थी, plants with no leaves. Last category, fourth category, that is the plants with no leaves. Plants with no leaves. देखो इनके नाम से ही पता चल रहा है, no leaves मतलब जिनके पत्ते नहीं होते. Means example is कैक्टस आपने देखा है, डेजर्ट एरियाज में कैक्टस होते हैं, कैक्टस ग्रो करते हैं. These plants grow in the dry places or in the desert areas. So they have a flat stem which is green in color. इनकी जो स्टेम होती है वो फ्लैट होती है, फ्लैट स्टेम and green in with green in color. Green in, ये जो फ्लैट स्टेम होती है, it helps to save water. इनकी जो ये फ्लैट स्टेम होती है ये पानी को सेव करने में मदद करती है, ठीक है. एंड देयर लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स. लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स. स्पाइन्स का मतलब क्या होता है? कांटे. स्पाइन्स, ये जो लीव्स इसके हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं स्पाइन्स में, कांटों में बदल जाते हैं, क्योंकि जिससे कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन ये पानी को कम लूज कर पाए, ठीक है. सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ अनयूजुअल प्लांट्स. नाउ वी डिस्कस अबाउट द एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स. Another topic is energy flow in the living things. Energy flow in the living things. Energy flow in the living things. That I will tell you with the equation. As you all know, sun is the ultimate source of energy. Sun is the ultimate source of energy. Sun ultimate source of energy है. अब इसको हम इक्वेशन में कैसे देखेंगे? Sun energy now plants, आपने पहले ही पढ़ा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स ट्रैप्स द सन्स एनर्जी. प्लांट सन एनर्जी लेते हैं. दीज आर ट्रैप्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स.
sun energy is trapped by the green plants. These green plants are then eaten up by the herbivores animals and by the humans. ये जो green plants हैं, I already told you, all the food that we eat comes directly or indirectly. जो भी खाना हम खाते हैं वो directly या indirectly किससे मिलता है? Green plants से. So green plants traps the sun's energy during the process of photosynthesis, and these green plants are then eaten up by the herbivores animals and the humans. ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको कौन खाते हैं? हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं प्लांट ईटर जो पौधों को खाते हैं, ठीक है, एंड द ह्यूमंस. एंड देन these herbivore animals and sometimes the humans are eaten up by the carnivorous animals. So the energy flow from the sun to the carnivore and जो energy, sun energy, this flows from the green plants to the carnivorous animals. ये ऐसे flow होती है इसमें carnivorous animals में. Now the second last topic is relationship between plants and animals. अब पौधों में और एनिमल्स में क्या रिलेशनशिप है? मैंने आपको पहले ही बताया था, अपने प्रीवियस फर्स्ट और सेकंड वीडियो में दोनों में बताया है कि प्लांट्स आर वेरी नेसेसरी. All the food that we eat comes directly or indirectly from the plants. So actually we all depends on the plants. So relationship between plants and animals. अब जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो भी एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं और एनिमल्स भी प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. सबसे पहले प्लांट्स एनिमल्स पर कैसे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स. कैसे? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड. during photosynthesis process plants need कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसे हम बोलते हैं. प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है. इस प्रोसेस में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वो कहां से लेते हैं? द एनिमल्स से. एनिमल्स ब्रीथ आउट carbon dioxide during breathing. Plants take carbon dioxide from the animals which they breathe, which the animals breathe out during breathing process. Breathe out. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एनिमल्स छोड़ते हैं. जैसे हम सांस छोड़ते हैं ना, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड. जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और जब लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं. सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड is used up by the plants to prepare their food by the process of photosynthesis. This CO2 is used up by the plants during the process of photosynthesis. During the process of photosynthesis. Hence, plants depends on animals. And the next one is how animals depends on plants. ये तो हो गया ना कि प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं. अब एनिमल्स प्लांट्स पर कैसे डिपेंड होते हैं? एनिमल्स प्लांट्स पे कैसे डिपेंड होते हैं?
all the foods that animals eat comes from the plants. All food that animals eat comes from the plants. सारा खाना जो एनिमल्स खाते हैं that comes from the plants. So the how animals depend on plants. अब पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं. द ऑक्सीजन रिलीजेस by the plants during the process of photosynthesis. Photosynthesis is used up by animal, is very necessary, is very useful for animals to breathe. एनिमल्स को सांस लेने के लिए वो ऑक्सीजन बहुत, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स, वी ह्यूमन बीइंग्स आल्सो यूज ऑक्सीजन टू ब्रीथ. वो ऑक्सीजन यूज करने के लिए बहुत जरूरी होती है. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. नाउ आवर लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज बैलेंस इन नेचर. अब इन दोनों में, प्लांट्स और एनिमल्स में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी. बैलेंस इन नेचर, दोनों में बैलेंस होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ देयर आर मोर प्लांट्स, अब अगर प्लांट्स ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज करेंगे. एनिमल्स इतने होंगे नहीं जो कि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, जो कि प्लांट्स के लिए जरूरी है. सो द प्लांट्स डाई ऑफ. इफ देयर आर मोर प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड that is released by the animals and the humans, which is necessary for the photosynthesis. For photosynthesis, फूड मेकिंग ऑफ प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिलीज करते हैं एनिमल्स या ह्यूमंस, वो बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस में. फूड मेकिंग फॉर द प्लांट. फोटोसिंथेसिस इज द फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट्स. खाना बनाने, पौधों को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है. लेकिन अगर प्लांट्स ज्यादा हो जाएंगे और एनिमल्स कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा रिलीज नहीं होगी जो कि प्लांट्स को खाना बनाने के लिए चाहिए, जिससे कि प्लांट्स विल डाई ऑफ ड्यू टू द लैक ऑफ CO2 that is released by the animals and humans during breathing. ठीक है, समझ गए कि अगर पौधे ज्यादा हो जाएंगे तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, जो कि उनके खाना बनाने के लिए बहुत जरूरी है, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स द्वारा ही मिलती है जब वो सांस छोड़ते हैं.
नाउ इफ देयर आर मोर एनिमल्स, अब अगर एनिमल्स ज्यादा हो जाएंगे, एनिमल्स अगर ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा? इफ देयर आर मोर एनिमल्स देन ऑल्सो प्रॉब्लम अराइजेस। अगर ज्यादा एनिमल्स हो जाएंगे तब भी प्रॉब्लम होगी। मोर एनिमल्स, द ऑक्सीजन दे नीड, ऑक्सीजन needed by the animals and humans is not proportional, जो ऑक्सीजन एनिमल्स और वी ह्यूमन बींग्स, हमें ह्यूमन बींग्स को चाहिए, वो प्रॉपर नहीं मिलेगी अगर एनिमल्स ज्यादा हो जाएंगे और प्लांट्स कम होंगे। तो ऑक्सीजन जो प्लांट्स रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो ज्यादा नहीं मिलेगी, तो एनिमल्स विल डाई, कैनॉट सर्वाइव, एनिमल्स कैनॉट सर्वाइव। सो टू मेक देम अलाइव ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी। उनको जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। इट मीन्स जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, जो कि पौधों से मिलती है। इसलिए इन दोनों में बैलेंस, दोनों में प्लांट्स और एनिमल्स में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सो बैलेंस इन नेचर इज वेरी नेसेसरी। फॉर दिस बैलेंस वी हैव टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। अब प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वन महोत्सव टाइप के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं कि प्लांट्स को एक तो कट करना, हमें कम करना चाहिए, बहुत जरूरी हो तभी कट करना चाहिए। वी हैव टू प्लांट मोर प्लांट्स, वी हैव टू ग्रो मोर प्लांट्स, ठीक है। और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मैनी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज are made by the government, अब एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं ताकि एनिमल्स उसमें प्रोटेक्टर्स के, उनको नुकसान ना, वो खत्म ना हो, सो दैट द बैलेंस इन नेचर रिमेन्स प्रॉपर। दिस इज द फुल चैप्टर Number 1, food making in plants. So students, watch all the 3 videos to understand the full chapter food making in plants. Thank you so much.